scholars, my dear students. I, Shruti Singh, Assistant Professor at Geeta Ratan Institute of Advanced Studies and Training, on behalf of Geeta Ratan fraternity, feels extremely privileged to welcome you all for today's national conference. We all have gathered here to discuss about the present teaching learning scenario in Indian schools in the context of entrepreneurial inputs. And therefore, the theme for today's national conference is revolutionizing teacher education with entrepreneurial inputs. I feel immense pleasure to welcome Honorable and very knowledgeable Dr. S.K. Bhatia sir, former Associate Professor at CIE, Department of Education, University of Delhi, for Synosia address. Next, I welcome very dynamic and renowned figure in the field of education, Professor Dhananjay Joshi, Vice Chancellor, Delhi Teachers University. It is a sublime privilege to welcome an eminent educationist, Professor Vandana Saxena, Professor at CIE Department of Education, University of Delhi. I express my warm welcome to our mentors and principal, Professor Sonia Jindal ma'am, who has been an inspirational source for organizing today's national conference. I would like to extend my special welcome to dignitaries, participants, faculty members of various colleges. Once again, welcome you all. The schedule that we would be following for today's national conference would start with the symposium, which would be given by Dr. S.K. Bhatia sir, followed by a technical session by Professor Dhananjay Joshi. Then we will have an open house discussion on it. After that, a technical session which would be given by Professor Vandana Saxena, followed by an open house discussion. And for gratitude, we have Ms. Shalu with us. Taking this conference one step further, I would like to invite Ms. Shikha Sharma, Assistant Professor, Geeta Ratan Institute of Advanced Studies and Training, for abridgment. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, Shruti ma'am, for welcoming me. So, for the Sanasaur address, I would like to invite Dr. S.K. Bhatia sir, former Associate Professor, CIE, Department of Education, University of Delhi. Sir has a long experience of teaching school organization and management at B.Ed and M.Ed level. Sir has also guided number of research scholars in education administration and teaching strategies at MPhil and PhD level. Many of his research papers have been published in prestigious national and international journal of education. Dr. S.K. Bhatia sir has authored more than 16 books for the senior secondary, DLED and B.Ed students. Recently, a book has been authored on published on experiential learning, an offshoot of New Education Policy 2020, authored by Dr. S.K. Bhatia sir and edited by Professor Dhananjay Joshi sir. Sir has a long association of more than 25 years with Geeta Ratan family. Sir has been guiding torch for the institution and stands as a pillar of excellence in all spheres for our institute. Sir, I would like to welcome you for the Sanasaur address. Sir, please, the stage is all yours. Thank you. Vice Chancellor Dhananjay Joshi, Professor Sonia Jindal, Professor Vandana Saxena, faculty members, and the participating teacher educators and research scholars and students. I'm thankful to Professor Sonia Jindal, the management of Geeta Ratan Institute, the faculty members of this institute, for choosing this very need-based topic, revolutionizing teacher education with entrepreneurial inputs. So this, you see, gathers more importance from the fact that entrepreneurial inputs in teacher education and in schools getting importance. And now it has become
part of the curriculum in some department of education, even in this university and in some other universities also. And by the turn of the century, you see, this became a popular paper in some advanced countries like USA, UK, and it is gaining importance in India also since 2010. Some universities, they are considering it to make it a part of the curriculum. And as I told you, a few universities have already made it a part of their curriculum. Now, to start with, you see, so far as entrepreneurship is concerned, of course, this is a business-based discipline. I was in BCom, I was doing BCom honors long back. See, when I first time came across this concept of entrepreneurship, and from Shri Ram College of Commerce, and then later when I did MCom also, there also it was considered a very important topic. To start with, I would like to name few entrepreneurs who are very well known in the whole of the world. Like you must have heard and you must be knowing Bill Gates, the richest person once upon a time. His Microsoft organization, everybody knows about this. Then Steve Jobs, Apple Computers, and then G.D. Birla. So he is well known for tea, textile, even for education. And Birla Institute of Technology and Science, जिसको BITS short में कहते हैं, is also a very well known institute. So I would like to call G.D. Birla as education entrepreneur, edu-entrepreneur. See, the one who starts some venture in the field of education. And of course, the purpose may be to earn profit and to spread education in any area. So then that person is being called as education entrepreneur or edu-entrepreneur. And then to name few others, like Jamshedji Tata, he is known for steel and cotton. And the richest entrepreneur, it is perhaps Jeff Bezos, founder and CEO of Amazon. And now some people claim that no, he is the second richest. The first one is Elon Musk, जो SpaceX के लिए Space Exploration Technologies Corporation, जो space में means of transportation है, तो उसके लिए he is now considered the richest entrepreneur. And then of course in Asia, Mukesh Ambani, सभी इसको जानते हैं. Then you see, entrepreneurship is becoming so popular, not to talk of the university and college education. It has entered the domain of school education also. In school, even Delhi government, they have opened a university, entrepreneurship university, and in schools also, they have introduced it as a course of study. And they are encouraging the students to be entrepreneurs in the time to come. So if we want to see a simple meaning of entrepreneurship, it is the process of creating a new business. See, business-based entrepreneurship, process of creating a new business, bearing any of the risks with a view of making profit. So this is the concept which we have been studying since long. And now it is, as I told you, it is entering the domain of education also. And as the today's theme, revolutionizing teacher education with entrepreneurial inputs is concerned. So let us see which are critical properties, are common in entrepreneurship, business-based entrepreneurship. And when we
consider it as part and parcel of education, then what are the critical properties which are common and which are different? The one critical property, which is the creative idea of producing something new. Creative idea of producing something new or adding some features to the existing product or service. So isme I would like to give an example. You see, when TV appeared on the scene, and many of you must be knowing that initially it was black and white TV. तो जो टीवी के प्रोड्यूसर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग टीवी सेट्स, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें मार्केट में आना है, इफ वी हैव टू इंक्रीज आवर सेल्स, तो व्हाई नॉट टू थिंक ऑफ कलर टीवी. और जब कलर टीवी आया तो ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है, दे वेंट आउट ऑफ द मार्केट. ऐसे ही यू मे बी रिकॉलिंग एंड इट मे बी योर एक्सपीरियंस आल्सो, लाइक कई बार टीवी देख रहे होते हैं रात को, अपने बेड पे बैठ के देख रहे होते हैं, और देखते देखते ऐसा लगता है कि अब नींद आ गई, चलो टीवी बंद करें. तो जब स्विच बोर्ड पे टीवी बंद करने जाते थे और बंद करके आते थे, नींद खुल जाती थी. तो देन वी वर थिंकिंग, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट व्हाइल सिटिंग ऑन द बेड वी कैन स्विच ऑफ द टीवी राइट सिटिंग हियर और लाइंग हियर ऑन द बेड. तो वो जो एंटरप्रेन्योर था हु वाज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, तो वो रिमोट कंट्रोल जो है वो आ गया. तो ये जो क्रिएटिव आइडिया है, I think this is common in education also. I said, okay, let us see what are the common critical properties in business-based entrepreneur and education-based entrepreneurship. So having a critical idea. Now let us consider an example कि एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में या टीचर एजुकेशन में ऐसा कौन सा क्रिटिकल प्रॉपर्टी है जो विच इज बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरियल कंसेप्ट. तो इसमें जैसे देखो, मान लो कोई टीचर ये कहता है, ही इज टीचिंग इन ए स्कूल और ए टीचर एजुकेटर. वो ये कहता है कि व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, तो वो अपने तरीके से टॉपिक को पूरा करता जाता है, जो भी टॉपिक उसका है पूरा करता जाता है और पूरा कर देता है. और जब उसने पढ़ा दिया तो उसे पता चला कि देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अंडरस्टूड. तो इसमें जो क्रिटिकल प्रॉपर्टी जो इनपुट है, उसमें ये हो सकता है कि टीचर ये कहे कि एज सुन एज आई कंप्लीट a teaching point, I'll be asking question on that teaching point. It may be short answer type question. I'll be asking the students कि उन्होंने वो टीचिंग पॉइंट समझा है कि नहीं. तो वहीं उसी फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जब खत्म होगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड. तो अगर इफ देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अंडरस्टूड, सो ही कैन nip the evil in the bud. He can, you see, at the same time explain that teaching point himself, herself, or with the help of the students who have understood. So he will try to ascertain that that teaching point has been taken over by all the students who are attending the class. एक teaching point समझ में आ गया, then he starts the second, then he starts the third, and he follows the same thing. तो ये जो है, दिस इज एन इनपुट. जैसे मैंने कहा कि वो रिमोट कंट्रोल की बात है, ऐसे ही ये भी एजुकेशन का रिमोट कंट्रोल है एक किस्म से, कि एज सुन एज वन टीचिंग पॉइंट इज फिनिश्ड, ओनली देन द सेकंड एंड द थर्ड एंड द फोर्थ विल बी टेकन अप लेटर ऑन. ऐसे ही मान लो कोई टीचर एजुकेटर है या कोई टीचर है, तो a teacher educator, while observing a lesson of the student teacher in the class, finds out that perfect understanding is not taking place. And maybe he might have noted this thing, the understanding is not taking place because the teaching strategy or the teaching method is not appropriate. तो वहाँ हम ये देखते हैं कि content based
कंटेंट की नेचर क्या है, कंटेंट की नेचर क्या है। अब अगर इफ वी bring in this thing in training the teachers or in the classroom also, in training the classroom teachers also, हम उनको ये कहें भाई देखो आपको कंटेंट की नेचर पहले आइडेंटिफाई करनी है, एंड वी हैव बीन डूइंग दिस थिंग. इफ प्रोफेसर वंदना इज देयर, शी मे एग्री विद मी कि सीआई में जब हम सेशन शुरू होता है तो फर्स्ट वीक और फर्स्ट 2 वीक्स हम इसी बात पे लगाते हैं कि स्टूडेंट्स को ये पता चलना चाहिए कि कंटेंट की नेचर क्या है. व्हेन आई से व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंटेंट, अगर सपोज ए टॉपिक इज टू बी टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम और वो टॉपिक जो है उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स की बिल्कुल नहीं है, एंड द टीचर वांट्स टू टीच द फैक्ट्स, तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना, द नेचर ऑफ द कंटेंट इज सच, तो तब हम स्टूडेंट्स को कहते थे कि यू यूज लेक्चर मेथड. एंड इफ द नेचर ऑफ द टॉपिक इज सच, students already have some previous knowledge, तो in that case questioning, question answer method जो है वो follow करते थे. ऐसे ही after recognizing the need of the topic, तो appropriate जो method of teaching है, जो strategy of teaching है, उसको हम adopt करते थे. So this again is an input, and this is just like the input of entrepreneurship. वो business में करते हैं, हम education में करते हैं. मैंने आपको ये कहा, आई एम जस्ट गिविंग यू द सिनॉप्सिस, द आउटलाइंस. आई नो प्रोफेसर धनंजय इज देयर एंड ही इज एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, एंड आई नो ही हैज ऑलरेडी गाइडेड ए रिसर्च स्टूडेंट ऑन दिस टॉपिक, सो ही इज एन एक्सपर्ट. इवन वंदना सक्सेना, she is also an expert in this topic. They may go in depth as there is time limitation in case of Professor Dhananjay. You know, today he is a vice chancellor, और कभी मिनिस्टर का फोन आ जाता है, कभी कुछ है, तो he may not be able to give you full time, but he has in-depth knowledge. तो when it is his turn, when he takes up the topic, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में वो शेयर करेंगे. तो मैंने आपसे ये कहा कि हम ये देखेंगे कि what are the critical properties common in business-based entrepreneurship and education-based entrepreneurship. I have already shared with you a creative idea जो है of producing a new product or adding some feature to the existing. तो ये जो idea, creative idea है, this is required both in business and education also. Then second critical property is managing resources. अब जो business में रिसोर्सेज मैनेज करनी है, कैपिटल की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और दूसरी मैन पावर की जरूरत है. तो जो एंटरप्रेन्योर है, जैसे आजकल स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, तो उसमें ये चीजें मैनेज करता है. इवन गवर्नमेंट जो है वो भी स्टार्टअप जो शुरू करते हैं उनकी हेल्प कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आल्सो. तो इसमें हमें जब हम कहते हैं मैनेजिंग रिसोर्सेस, तो एजुकेशन में कौन सी रिसोर्सेज हमें मैनेज करनी होंगी. इसमें हमें वी मे हैव टू स्ट्रेंथन द लाइब्रेरी. उसमें रिक्वायर्ड बुक्स जो हैं, नीड बेस्ड बुक्स जो हैं, वी विल बी एनरिचिंग द लाइब्रेरी विद दिस, एनरिचिंग द लैब्स, ओपनिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्स सेंटर. देयर शुड बी अ रिसोर्स सेंटर आल्सो. ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स and proper use of foundation papers. ये B.Ed के जो foundation papers हैं, इनका proper use करना, क्योंकि whatever is taught in the foundation papers like philosophy, psychology based papers, sociology based papers, so these are not studied for their own sake. These are studied because the teacher trainees, they have to be apt, they have to be expert in their respective teaching subjects, और ये जो foundation papers है इसको तो apply करना है. So like that you see resources are to be managed in teacher education institutes and in the schools also. I told you long back, I happened to visit Oxford University and then another Westminster College of Education also. So I just had a glance of their course contents,
which they follow in the teaching of B.Ed and M.Ed, तो वहाँ मैंने देखा कि हमारे जो फाउंडेशन पेपर हैं फुल फ्लेश्ड साइकोलॉजी बेस्ड, सोशियोलॉजी बेस्ड, फिलॉसफी बेस्ड, हमारा एम्फेसिस जो है एज इफ वी आर टीचिंग देम फिलॉसफी, वी आर टीचिंग देम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। उनसे मैंने पूछा कि you don't have such detailed papers in your curriculum. They said that we have integrated the required contents of philosophy, of psychology, of sociology in the methods of teaching paper. वहाँ इस तरह का है, और हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस और इतना ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है इन पेपर्स के कि एज इफ वी आर टीचिंग दीज पेपर्स। मैं अपने B.Ed के स्टूडेंट्स को, M.Ed के स्टूडेंट्स को ये कहता रहा हूँ कि whenever a foundation paper is being taught, whenever any paper, any topic of the foundation paper is taught, then you have to ensure this thing कि how its application will take place in the methodology papers. तो मैं स्टूडेंट टीचर्स को ये कहता रहा हूँ कि at the end of the teacher educators class you must ensure and you must ask कि how it will be applied to the teaching methodology paper। जैसे साइकोलॉजी में मोटिवेशन की थ्योरीज फाउंडेशन पेपर में पढ़ाते हैं, तो then in the classroom we have to take it to the classroom while teaching how we have to motivate our students, how we have to win their attention. So with this purpose we take up the foundation papers. Another thing is, another critical property in entrepreneurship is, another input is risk taking. So risk taking is there in business based entrepreneurship, and risk taking is there in education also. रिस्क तो होता ही है। अब मैंने तो आपको जैसे शेयर किया कि कंटेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग शुड बी यूज्ड। कंटेंट बेस्ड, जैसे मैंने कहा कि अगर फैक्ट्स और फर्स्ट टाइम कोई चीज पढ़ानी है तो लेक्चर, अगर स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड नॉलेज है तो क्वेश्चनिंग, ऐसे ही इफ फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स है तो डिस्कशन मेथड, तो ऐसे ही इफ समथिंग वी कैन ले हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मेथड। तो आफ्टर वी हैव आइडेंटिफाइड द नेचर ऑफ द कंटेंट वी शुड यूज दीज मेथड्स। एंड व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिनका साइकोलॉजी IQ जो है बहुत नीचे है, and what about those students who partly study and after that they have to help their parents in the fields or in their professions। और इस तरह के जो हैंडीकैप्ड कोई स्टूडेंट है, स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो वो हम तो इधर लगे रहे कि हमें तो जी कंटेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज करनी है, और उस तरह के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें फिर हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है ये अप्रोच देखनी पड़ेगी। एनीवे रिस्क टेकिंग तो है, हम कोई इनोवेटिव स्टेप लेते हैं, कोई रिसर्च बेस्ड स्टेप लेते हैं, तो वहाँ वो लागू हो सकता है, ना हो, मोस्टली होता है, लेकिन ना हो तो इन दैट केस हमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो फॉलो करनी होगी। अनदर प्रॉपर्टी, क्रिटिकल प्रॉपर्टी विच इज देयर इन बिजनेस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। ये सारे जो इनपुट्स जो हमने अभी यूज किए हैं उससे प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है। एंटरप्रेन्योर जैसे मैंने कुछ शुरू में नाम भी लिए, उन्होंने जब अपना वेंचर शुरू किया होगा तो दे आल्सो मस्ट हैव बीन टू माइंड्स, अगर नुकसान हो गया तो, लेकिन उनके क्रिएटिव आइडियाज थे, उनको यूज किया गया और उनको फायदा ही फायदा हुआ, और आज वो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बने हुए हैं। तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है। और एजुकेशन बेस्ड जो एंटरप्रेन्योरियल इनपुट्स हैं वहाँ क्या, वहाँ भी प्रॉफिटेबिलिटी है। वहाँ हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरह पे की जगह पे वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम नॉट प्रॉफिटेबिलिटी, वहाँ हमारा होगा एन ऑलराउंडर्स, वी हैव टू प्रोड्यूस ऑलराउंडर्स। ये सिर्फ क्रिटिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट। एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। हाँ जी, अच्छा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ।
So we have to produce all-rounders. So I will conclude with this. देखो ये जो इनपुट्स हैं, रेवोल्यूशनाइजिंग टीचर एजुकेशन विद एंटरप्रेन्योरियल इनपुट्स, तो ये जो इनपुट्स हैं, अब टीचर क्लासरूम में या टीचर एजुकेशन में जो टीचर एजुकेटर है वो इज यूजिंग ऑल दीज इनपुट्स। तो इससे थोड़ा नॉमेनक्लेचर जो इनका डेजिग्नेशन जो इनका नाम है, जैसे मैंने कहा, तो जो स्कूल में अगर टीचर कोई इसको यूज करता है तो उसको हम कहेंगे टीचर प्रीन्योर। अगर जैसे मैंने बिरला का एग्जांपल दिया, उन्होंने जो इंस्टीट्यूट खोला तो पिलानी में, तो वो उस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एजुप्रेन्योर्स कहेंगे। और एक टर्म मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, प्रोफेसर धनंजय, वेदर ही एग्रीज विद मी और नॉट, और प्रोफेसर वंदना सक्सेना, जो टीचर एजुकेशन में जो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, तो उनको हम टीचर एजुकेटर प्रीन्योर्स कह सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू। एज आई टोल्ड यू कि आई डिड नॉट वांट टू गो इन डेप्थ। हमारे एक्सपर्ट्स दोनों ही जो हैं, दे आर रियली एक्सपर्ट्स ऑन दिस सब्जेक्ट, एंड नाउ आई लीव इट टू देम कि what details they share with you on this topic. Thank you. Thank you very much, sir, for your critical and valuable inputs. Now, I would like to invite our principal, ma'am, Professor Sonia Jindal, to welcome our resource person, Professor Dhananjay Joshi, sir, for the technical session 1. Please welcome you, ma'am. Ma'am, please unmute name. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Sorry for the technical glitch a little. First of all, I would like to thank you, Bhatia sir, for such a valuable keynote address. And at this platform, I take this opportunity to first of all congratulate Professor Dhananjay Joshi sir to become a Vice Chancellor of Delhi Teachers University in our Delhi state. And it is a proud moment for our college that despite of his busy schedule, he has agreed to share his views and ideas with us. There is a long welcome address for Dhananjay sir, but I will briefly say because of little time, we have little time barrier. Sir, I will take this privilege to introduce you as a resource person for technical session 1. Sir, who has always been he is very experienced. एक कहावत है, होनहार बिरवान के हो चीखने पार। सर को जब से भी मैं जानती हूँ, पिछले आई थिंक 15-20 साल से, हमेशा उनके हुनर को मैंने पहचाना है। और ही इज सच अ हम्बल and ground to earth person, and always they are ready to help, guide, and being a philosopher and guide to every, not even to us, and also to all the student community and teacher community, education community. We are catering to, always there with all his valuable wisdom and knowledge he can share. And he has been the dean and professor in University School of Education, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka. His intellect, we have no words to express what kind of intellect he has. He is one of the most intelligent person in our academic field, and now thing speaks itself that he has become Vice Chancellor. Then under his guidance and tutelage, we will able to improve our education system and able to do good quality of education work under his guidance. So there's lot of introduction things, writing his books, good poet, visiting various university, and writing lots of national and international papers. That is his. He has been into All India FM radio. So many things into his cap, lots of feather.
but a recent feather which has graced all of us also is becoming a vice chancellor in Delhi Teachers University. So I will not take further more time, and it is again, I'll say, a very proud moment for Geeta Rattan Institute of Advanced Studies and Training to welcome you, sir. Thank you so much, sir. Please welcome. It's over to you, sir. Thank you very much, Honorable Principal of Geeta Rattan Institute of Teacher Education, GIST, Professor Sonia ji, for giving my introduction. My revered teacher, guru, guide, mentor, philosopher, Dr. S.K. Bhatia sir, who had been very kind in shaping our destiny since we were in our B.Ed days. और जैसा कि कहा जाता है कि गुरु ही होता है जो उंगली पकड़ के राह दिखाता है और आगे बढ़ाता है. So you have done it. You have contributed in our life immensely, which is beyond my words. I bow down in front of you. Our very respected teacher, Professor Vandana Saxena ji, who had been a pillar of strength for us, and she is guiding us since CI days. The organizers, Dr. Shikha, and all the member of GIST family for giving me this honor to be the part of your national conference. As Sonia ji is telling me that I have been bestowed with the very important and prestigious position by Delhi government as the first Vice Chancellor of Delhi Teachers University. So there are some kind of more engagements now, more than an academician. I have to play work of an administrator. Since it's a very new university, just 1 month old, so we were working for making this university a world class, and for that the founder has to do various kind of work from pillar to post. We are working for making our curriculum, for getting good new courses, because time span is very less. So I had a meeting, so I requested to Dr. Sonia that please give me time that I could not be possible for me to be on 11 because I had to reach to Secretariat. We had a meeting at 12 o'clock. So with these words, I'll come to the topic which is assigned to me, revolutionizing teacher education with entrepreneurial inputs. The word revolutionizing teacher education is very, very important, dear friends. जब हम revolution की बात करते हैं तो मुझे इतिहास की वो बात याद आती है जब फ्रांस में पहली क्रांति हुई थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन has given three key words: equality, liberty and fraternity. Under the very meaningful and very thought-provoking philosopher of its own times, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau was the pillar of French Revolution, and he has given three words: equality, liberty and fraternity. Our teacher education is also going through this under transition phase. So we need a revolution in teacher education because it's a high time. If we could not be aware, if we will not take more rigorous steps, so I feel the new generation will not forgive us. We have to do very, very hard work for making this profession again a great profession. We are here to discuss about how we can also incorporate entrepreneurial inputs. But before that, I would like to also focus that why we need revolution in the field of entrepreneurship and in the field of teacher education. In last 75 years, our total focus and our forte is basically to all other major areas. Various governments वाले आज विद्यार्थी नहीं है. आज जो बेस्ट स्टूडेंट है वो दूसरे प्रोफेशंस में जाना चाहता है. वो अपना लक्ष्य IIM को समझता है, वो अपने तैयारी IIT की करता है. वो किसी भी तरीके से टीचर एजुकेशन को अपना भविष्य नहीं देखता. अगर किसी कक्षा में बच्चों को पूछा जाए तो उनके लिए इस प्रोफेशन में आने का कोई फायदा उन्हें
मार्च 2022 को की गई और आज हम 7 अप्रैल को आपसे मुखातिब हैं। पिछले 32 दिन में हमने जो कार्य किए, मैं यहाँ पर उसके लिए अलग समय में लूंगा, लेकिन हम यहाँ आपको ये बताना चाहते हैं, जो मिशन है वो ये है कि अगर हमने विश्व को पुनः, भारत को विश्व गुरु बनाना है, अगर हमने भारत की फिर से अस्मिता को जगाना है, इफ यू वांट टू कम टू एन नेशन लाइक डेवलप्ड नेशन, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर एक्ट टुडे। आई जस्ट कोट समवेयर, आई हैव रेड, और मैं उसको हर जगह ये कहता हूँ, और मुझे लाइनें कहीं अच्छी भी लगती हैं कि मैं सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल और बहुत सारे भारत के उन लोगों की एंटरप्रेन्योर हैं और भारत से बाहर जाके इतना कुछ दुनिया में दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने वो कोट रखना चाहता हूँ जो ये कहता है, द बेस्ट ऑफ द अमेरिकन्स आर वर्किंग फॉर अमेरिका, द बेस्ट ऑफ द चाइनीज वर्किंग फॉर द चाइना, the best of the Germans working for Germany, best of Japanese are working for Japan, but the best of Indians not working for India. Why? The best of Indians not working for India. This is the big question. कि जो भारतीय हैं वो अपने लिए काम नहीं करते, हम किन के लिए लोगों का उत्पादन कर रहे हैं? उन राष्ट्र की इकोनॉमी को बनाने के लिए अपने IIT और IIM से बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो उन देशों की सेवा करें। यानी यहाँ से पढ़ने के बाद हमारा बच्चा विश्व के उन देशों में जा रहा है जो विश्व में हमारे को सेकंड सिटीजन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि हमारा जो बेस्ट ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो कमी है वो ये है कि हमने अभी तक अपने माइंडसेट को नहीं बदला, हमने अपने टीचर्स पे ध्यान नहीं दिया, और उस टीचर को हमने अभी भी मान लिया लास्ट चॉइस है। टीचिंग इज स्टिल कंसिडर्ड द लास्ट रिजॉर्ट। Why the best students are not coming in this profession? There are so many societal, economical, cultural and various other issues. But अगर हमने अपने देश में टीचर्स की एजुकेशन पे ध्यान देंगे तभी अच्छे अदर प्रोफेशनल्स निकलेंगे, ये बात तय है। इसी मंतव्य के साथ और इसी भावना के साथ और इसी मिशन के साथ इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है। And we have to strive better, we have to do something great, and we have to do something different, because 75 years of span is so big that we have focused only in quantitative development. We are missing the qualitative. हमने संख्यात्मक विकास तो किया लेकिन हम गुणात्मक विकास में पीछे रह गए। इसीलिए 75 वर्ष बाद भी जब हम ये कहते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, तो आज भारत की युवा पीढ़ी ये पूछना चाहती है वो दिन कौन सा होगा जब हम कामयाब होंगे? वो दिन कौन सा होगा जब हमारे पीछे से विकासशील का टैग हट जाएगा और हम एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे? और विकसित राष्ट्र के 5 ही पैरामीटर हैं जो बहुत सिंपल हैं कि दे प्रोवाइड फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन टू एवरीवन। और हम अभी भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य अपने हर नागरिक को नहीं दे पाए। इसीलिए हम आज भी विकासशील हैं। इसीलिए आज भी हमारी गिनती जो मानवीय विकास का सूचकांक है जो WHO का, उसमें हम 149 कैटेगरी में आते हैं। हम इसीलिए प्रसन्न हो जाते हैं कि हमसे पीछे पाकिस्तान और हमसे नीचे बांग्लादेश और श्रीलंका है, लेकिन हमें अपने पड़ोसी चाइना को देखना चाहिए जो हर तरीके की, चाहे स्वर्ण पदक की तालिका हो, ओलंपिक मेडल से लेके, चाहे इकोनॉमी में, चाहे वो एजुकेशन में, हमारे एक भी विश्वविद्यालय का नाम आज 100 विश्वविद्यालयों में नहीं आ पाता। उसकी क्या वजह है? हमें इसकी चिंतन करना चाहिए। जहां नालंदा, तक्षशिला की बात आज हमारी नई शिक्षा नीति कहती है, जिस देश ने इतना कुछ दिया, जहां से आचार्य चाणक्य जैसा इतना बड़ा टीचर पैदा हुआ, जिसने एक छोटे से मौर्य साम्राज्य के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य को बना करके मौर्य साम्राज्य बना दिया, जिस देश ने इतने जो है बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट दिए, जिनकी इतनी बड़ी सूची है कि यहाँ पर समय कम पड़ जाएगा बात करने के लिए। उसकी वजह ये थी कि हमारी शिक्षा जो थी वो एंटरप्रेन्योरशिप पर आधारित थी। उस कहा गया हमारे ऋग्वेद में, अर्थ करी सा विद्या, यानी एजुकेशन विच गिव्स यू इकोनॉमी, एजुकेशन विल गिव्स यू मनी, एजुकेशन विच रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट। अर्थ करी सा विद्या, यानी विद्या वो जो अर्थ भी दिलाए। हम कोई भी शिक्षा तब लेना चाहते हैं जबकि हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट हो, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो ये है कि वो जो कार्य करता है वो उसके साथ वो उसका रिवॉर्ड भी चाहता है। अगर हमने शिक्षा ली, अगर हम उसका रिवॉर्ड नहीं मिला तो शिक्षा नहीं रह जाएगी, वो मात्र डिग्री बन के रह जाएगी। और हमने यही किया, हमने 75 सालों में डिग्रियां बांटी, और डिग्री बांटने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ कंप्रोमाइज कर गए। हमने साक्षरता तो दी लेकिन हमने शिक्षा नहीं दी। शिक्षा और साक्षरता के बीच बहुत मूलभूत अंतर है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन है, जिस
आज स्किल एजुकेशन के नाम से भारत सरकार, मेक इन इंडिया के नाम से भारत सरकार चाहती है, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने अपने करिकुलम में माइंडसेट करिकुलम लाए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम लेके आए हैं, ताकि हमारे बच्चे जॉब सीकर्स ना बने, वो नौकरी के को खोजे नहीं, बल्कि वो जॉब प्रोवाइडर्स बने। इसी तरीके का भी एक माइंड बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार ने कराया, जिसमें 11वीं 12वीं के बच्चों को, जो सरकारी स्कूल के बड़े रिमोट एरिया के बच्चे हैं, मैं उसके कार्यक्रम में गया, उनको 2000 रुपए की सीड मनी दी गई। उन बच्चों के बिजनेस आइडियाज इतने जबरदस्त कि मुझे उनमें लगा कि कोई न कोई ये बच्चा एक दिन भारत का नाम लेके नहीं आए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये बात आज नए शब्दों में एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से आ गई, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको बहुत पहले कहीं न कहीं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ कह दी थी, जिस पर प्रोफेसर भाटिया ने काम किया है। और वो एजुकेशन जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही लेके जाती है, जो 3H की बात कहती है, एजुकेशन ऑफ हेड, एजुकेशन ऑफ हैंड एंड एजुकेशन ऑफ हार्ट। द कॉम्बिनेशन ऑफ 3H, the real education should not only be cognitive, but it must be effective, it must touch your heart, it must something refine your skills। अगर शिक्षा आपके शरीर, मन और मस्तिष्क का विकास नहीं करती, अगर शिक्षा आपको सिर्फ मस्तिष्क का विकास करती है, आपको शारीरिक और संवेगात्मक रूप से विकसित मनुष्य नहीं बनाती, तो वो शिक्षा आपको पंगु बनाती है, वो शिक्षा कहीं ना कहीं हमें डिसेबल्ड बनाती है। तो ये पूरी एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एक तरीके का रेवोल्यूशन है, और ये हमारी जीन्स में रहा है। भारत की अगर आप पूरी इकोनॉमी को देखें, अगर 1947 से पहले का भी भारत देखें, तो भारत एक सेल्फ रिलायंट नेशन था। आजादी से पहले का भारत अगर आप बात करें, जब अंग्रेजों के आने से पहले की इकोनॉमी की बात करें, तो इंडिया का वर्ल्ड की इकोनॉमी में 8 ट्रिलियन, जिसको आज हमारे देश के निर्माता 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारा 8 ट्रिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था। और वो एक्सपोर्ट हमारे देश का हर क्षेत्र में इतना विकसित था कि भारत का नाम विश्व में, भारत की पताका विश्व में गूंजती थी। $1 1 रुपए के बराबर था। आज डॉलर की कीमत 80 रुपए के आसपास है, और पाउंड्स तो शायद 100 रुपए पहुंच गया है। जहां $1 इंटू $1 था, यानी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा नियामक होता है, जो द्योतक होता है, वो उसका रुपया होता है। और आज हम $1 की क्या कीमत है? आज अगर $1 की बात करेंगे तो भारत के बगल में एक छोटा सा देश है हांगकांग, वो भी हमसे आगे है। ताइवान, उसका रुपया भी हमसे आगे है। और छोटे छोटे से देश कोरिया और भारत से पहले जापान, इनका येन भी हमसे बहुत आगे है। जो देश इतने छोटे छोटे टापुओं में बने हुए हैं, जिसको 1945 में नागासाकी हिरोशिमा को तबाह कर दिया गया, और जिसके बारे में जापान के कहा गया था कि विश्व में उठ नहीं पाएगा, वह देश आज जो है विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक देश बनके सारे देश के सामने एक नई इबारत लिख रहा है। वो कोरिया, जो भारत के बाद आजाद हुआ, दक्षिण कोरिया, जिसको नॉर्थ कोरिया से हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ जैसे भारत को प्रतिद्वंदिता मिलती है, वैसे प्रतिद्वंदिता मिली। वो आज LG, सैमसंग और नया ने कितने उपकरण बना चुका है। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को अपने करिकुलम का पार्ट बनाया। वहां हायर एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन को बहुत मजबूत किया। और हमने अपने बेसिक एजुकेशन को नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी का पार्ट बना करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। और वही गलती हो गई, क्योंकि जब महात्मा गांधी ये चाहते थे कि राइट टू एजुकेशन बने, तो संविधान सभा को शायद ये लगा कि अगर हमने राइट को, एजुकेशन को राइट बना दिया, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, बहुत तमाम चीजों की जरूरत होगी, तो इसलिए उन्होंने कहीं उसको DPSP में डाल दिया। लेकिन बाद में जब 93 में संविधान संशोधन हुआ और 2010 में सरकार को इसको कानून बनाना पड़ा कि शिक्षा एक अधिकार बना दिया जाए, मात्र किताबों में अधिकार बना दिया जाए या व्यक्तिगत तौर पे भी, जमीनी स्तर पर भी अधिकार बने, इस पे बहुत अंतर है। क्योंकि RT में तो ये कहा गया था कि ये 3 साल में अचीव कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी भारत के आधे राज्यों के पास अच्छे विद्यालय नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली सरकार पहली सरकार है जिसने 25% अपना बजट शिक्षा को दिया, और दिल्ली के सरकारी स्कूलों से लेकर के जितने भी भारत के वो स्कूल थे शिक्षा के, जो आज दिल्ली को अपना मॉडल मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर ईमानदार कोशिश की जाए, और कोशिश अगर ईमानदारी से और ऊपर से हो, तो नीचे उसका असर जरूर दिखता है। और मुझे लगता है कि भारत में बहुत ज्यादा जो है ना अवसरों की कमी बेशक है, लेकिन प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जिस देश ने APJ अब्दुल कलाम जैसे एक छोटे से इलाके से, क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को मिसाइल मैन बना दिया, तो मुझे लगता है प्रतिभा जन्मजात होती है, वो कहीं भी पैदा हो सकती है। शिक्षा सिर्फ उस प्रतिभा को विकसित करती है। सो होल फोकस शुड बी टू स्टार्टिंग this entrepreneurship education. It means we have to start, एक मैनेजमेंट में मंत्र है, कैच देम यंग।
अगर हमने ये कैच देम यंग का जो मैनेजमेंट का फॉर्मूला शिक्षा पे लगा दिया, अगर हमने शुरू से ही स्टार्टअप, अगर बच्चों का माइंडसेट में ही एंटरप्रेन्योरशिप ला दी और हमने उनको जॉब प्रोवाइडर बना दिया जॉब सीकर से, क्योंकि आज भी हम ये मानते हैं कि एक डिग्री मिले और हम एक डिग्री के बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दें। अभी कल ही आर्मी में भर्ती करने के लिए देश के हजारों युवाओं ने जंतर मंतर में प्रदर्शन किया कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, और पिछले 4-5 साल से भर्तियां नहीं खुली। एक राजस्थान के गंगानगर से एक युवक कितने हजारों किलोमीटर भागता हुआ दिल्ली पहुंचा है, सिर्फ इसलिए, अभी पीछे एक पिज्जा मैन जो डिलीवरी करता है पिज्जा बॉक्स का वायरल हुआ कि वो इसलिए घर तक दौड़ के जाता है कि वो सेना में भर्ती होने के लिए उसको जो फिजिकल परीक्षा है उसकी तैयारी करना चाहता है। कितने बड़े देश में कितनी समस्याएं हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी हमारे देश की समस्या। जब हमारे देश की आजादी के समय आबादी मात्र 35 करोड़ थी तब भी एक समस्या थी, आज हम 1 अरब 35 करोड़ हो गए हैं तब भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसकी वजह यही है कि हमने शिक्षा को व्यावसायिक नहीं बनाया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की बात नहीं करी, हमने करिकुलम को कहीं भी इंचेंटिंग नहीं किया, हमने इसके अंदर जो बेसिक जो फंडामेंटल्स होने चाहिए थे कि हम अपने स्टूडेंट के अंडर ये क्वालिटी ये पैदा कर सकें कि वो मात्र जॉब सीकर्स ना बने। तो इसी बात को हमारी एजुकेशन, हमारी नई शिक्षा नीति ने भी फोकस किया है। लेकिन अब समय सिर्फ फोकस करने का नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी, और स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी होंगी उसके लिए हमें अपने करिकुलम में मूलभूत परिवर्तन लाना होगा। उसको सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रखना होगा, हमने अपने टीचर ट्रेनिंग के करिकुलम में भी 40% जो करिकुलम है उसे प्रैक्टिकल बनाना होगा, बच्चों को ट्रेनिंग देनी होगी किसी इंडस्ट्री में जाकर के। और हमारे लिए इंडस्ट्री स्कूल हो सकते हैं, हमारे लिए इंडस्ट्री हमारे स्कूलों के अलावा हमारी एनजीओ या इस तरीके के जो डेवलपमेंट क्षेत्र में काम करने वाले एरिया हैं वो हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें मैपिंग करनी होगी, अपने करिकुलम को मैपिंग कराना होगा, इसकी कंसेप्ट मैपिंग बनानी होगी और इसको पूरी तरीके से इसमें हमें हेल्प लेनी होगी इंडस्ट्री की, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और होती है और जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। वो इसी तरीके से होता है कि कहीं थ्योरी अलग चल रही है और प्रैक्टिकल अलग चल रहा है। तो हमने कैसे अपने ट्रेनीज को इक्विप करना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के साथ, कैसे हमने उनको केवल टीचर ही नहीं तैयार करना बल्कि टीचर एज ए मैनेजर, टीचर एज ए लीडर, टीचर एज ए एंटरप्रेन्योर भी पैदा करना है। और उसके अंदर हमें ये कॉन्फिडेंस डालना है कि वो आने वाले बच्चों के अंदर इन स्किल्स को डेवलप कर सके। और ये तभी होगा जब हमने अपने करिकुलम में बुनियादी बदलाव लेके आने चाहिए। और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने टीचर एजुकेशन के करिकुलम में एक रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है, जिस पर हम सबको मिलके काम करना है। और इसमें केवल एक तरीका काम नहीं आएगा, इसमें केवल हमारे अकेले के स्तर पे नहीं, इस पर जब व्यवस्था जब बदलती है, जब पूरा का पूरा सिस्टम अगर बदलता है तो उसकी शुरुआत ऊपर से नीचे होती है, जब सरकार का सहयोग होता है और जिसमें के साथ साथ हमारे पॉलिसी मेकर्स अगर साथ में आ जाएं तो हमें एक मॉडल क्रिएट करना है, क्योंकि एजुकेशन इज ए सब सिस्टम ऑफ द होल सिस्टम। इफ यू वांट टू चेंज दिस सब सिस्टम, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट टू चेंजिंग द सिस्टम, एंड चेंजिंग द सिस्टम वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। सो फॉर दैट वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, एंड फॉर दैट वी हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली. We have to at least do something for I can say for knowledge level, at skill level. We have to create an attitudinal level, and for that we need a very kind of a rigorous strategies for entrepreneurship traits. Actually हम अपने यहाँ पर सिर्फ नॉलेज के लिए पर तो हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, लेकिन नॉलेज की ही बात नहीं करनी, उसको स्किल में भी लाना है और उसके साथ साथ एटीट्यूड में भी लेके आना है। जब तक एटीट्यूड नहीं बनेगा तब तक हम कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लेके आ सकते। और मुझे लगता है कि अब जो हमारे जो समय है अगला वाला, इसमें जो हमारे सामने जो पीढ़ी आ रही है ये बहुत ही हार्ड वर्किंग नहीं है, ये पीढ़ी बहुत स्मार्ट वर्किंग है, ये पीढ़ी बहुत आशान्वित है, ये पीढ़ी जो है बहुत आगे की बातों को सोचती है, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इनके पास एक गुण है और ये उस टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के
अपने एटीट्यूड में काम बदलना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि उसका जो सबसे बड़ा यूएसपी है आज की इस पीढ़ी का, कि वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका, और वो सेल्फ रिलायंस के बारे में सोचती है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर ये भावना जगानी होगी कि उनके अंदर इस कॉन्फिडेंस को पैदा करना होगा कि वो मोटिवेटर बने, वो इनोवेटर बने। क्योंकि जब तक आप इनोवेटर नहीं बनेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो आपको इनोवेटर बनना है और कहीं ना कहीं इनिशिएटर बनना है। तो जब हम इनोवेटर और इनिशिएटर बनाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा काम आसान हो जाएगा। जब ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया था न्यूटन ने, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो फीलिंग थी वो ये थी कि उसके मन में ये आइडिया आया कि ये जो एप्पल है ये जमीन में क्यों गिरता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता। तो ये कहीं ना कहीं उसकी जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा, इस क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का काम ही हमें अपने एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम के थ्रू करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों ही तरीके की मोटिवेशन देनी चाहिए अपने विद्यार्थियों को। और मुझे लगता है जो मेन आज हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के जो पैरामीटर होने चाहिए उसमें इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन, कि हम सभी व्यवस्था के जितने भी अंग हैं, चाहे वो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन है, उसके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। हम यूनिवर्सिटीज के जो लोग होते हैं, मैं उसमें अपने को भी गिनता हूं, उन्हें लगता है स्कूल में नहीं जाना चाहिए या प्रैक्टिस टीचिंग के अलावा हम एसईपी प्रोग्राम के अलावा कभी स्कूल की कोई मदद नहीं करते। और एक हायरार्की बहुत ज्यादा है कि जो प्रोफेसर है वो स्कूल के टीचर को बहुत ही मध्यम दर्जे का समझता है, जो स्कूल में जो पीजीटी है वो टीजीटी को अपने सामने कुछ नहीं समझता, और हायरार्की बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं ये पूरी कॉलोनियल जो माइंडसेट आया जिसमें हमारे अंदर हायरार्की बहुत आ गई, और इस हायरार्की की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमें लगता है ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे से नीचे वाले का काम है, और नीचे वाला सोचता है उससे नीचे वाले का काम है। इसलिए अगर हम ये जो माइंडसेट नहीं बदल पाए कि ये सारा काम ही मेरा है। जब भारत में एक बार वियतनाम के प्रधानमंत्री आए तो उनसे पूछा पत्रकारों ने, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं खेती करता हूं और खेती में ही मेरा मुख्य पेशा है, लेकिन मैं उसके साथ साथ देश का प्रधानमंत्री भी हूं। यानी बात कहने की यह है कि वो व्यक्ति खेती करने को अपना कार्य समझता है ताकि देश के लोगों को वो अनाज खिला सके। लेकिन हमारे यहाँ राजनेता सिर्फ एक कार्य करते हैं, राजनीति, उसके अलावा वो कोई और कार्य नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि हमने हाथ से काम करना छोड़ दिया। हमने अपने को कहीं ना कहीं एक कुकून में, एक कंफर्ट जोन में ला दिया, और हम केवल व्हाइट कॉलर जॉब की अपेक्षा करते हैं, ग्राउंड में वर्क करना नहीं समझते। तो जो ट्रेट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये शिक्षा नीति भी यही कहती है, इनोवेशन, कोऑर्डिनेशन, और कहीं ना कहीं इस बैरियर जो है, इस बैरियर को खत्म करना, कि हम हायरार्की को खत्म करना, इस कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करना, ये आज की मुझे लगता है एक बहुत बड़ा हमारा 75 वर्ष बाद अगर हम इस हायरार्की को खत्म कर पाएं, स्कूल और यूनिवर्सिटीज के बीच का गैप खत्म कर पाएं, यूनिवर्सिटीज और स्कूल के बीच में एक ब्रिज बना पाएं, तो मुझे लगता है उसका ये जरिया कहीं ना कहीं इस माइंडसेट के थ्रू ही जाएगा, जिसमें हमें एक रेजिलेंस की जरूरत है, जिसमें हमें एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक ओनरशिप लेनी होगी कि ये देश मेरा है, मुझे अपने देश को अपना सर्वहित देना है। क्योंकि जब जॉन एफ कैनेडी ये कहा करते थे कि डोंट आस्क दैट व्हाट अमेरिका हैज गिवन टू यू, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव गिवन टू अमेरिका। कि ये मत पूछे कि इस देश ने तुम्हें क्या दिया, आप स्वयं से पूछिए, मैंने इस राष्ट्र को क्या दिया, मैंने इस देश के लिए क्या दिया। क्या मैंने अपने इन बच्चों में से 4 भी ऐसे बच्चे बनाए जो देश के एक अच्छे नागरिक बन पाए? अगर आप एक भी अच्छे नागरिक का निर्माण कर पाते हैं तो मुझे लगता है एक टीचर के लिए इससे बड़ा, समाज के लिए इससे बड़ा, राष्ट्र के लिए कोई निर्माण नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है क्रांति का समय है, और इसका रास्ता कहीं ना कहीं इसी माध्यम से होके निकलता है। फॉर दैट वी नीड टू प्लान, वी नीड टू ऑर्गेनाइज, वी नीड टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, we need to make our objectives and thinking very clear, and we have to be very, very focused. So I believe in with these words, I would take permission to leave from this this conference and this seminar, and I feel very honored for giving me this opportunity, because the Geeta Rattan Institution is a part of one of my family only, because I still remember when we have started making our curriculum for 2 years, and for changing in our curriculum as per the sync with NEP. So the all the help from Sonia ji and his team I got in each and every sphere, even in Corona period. जब भी हमने काम किया, एक टीम की तरह काम किया, और इस GIS टेस्ट से बच्चों ने
इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया हमारे हर कार्यक्रम में, चाहे वो हमारी वॉल मैगजीन हो, चाहे हमारी एडुस्पार्क मैगजीन हो, चाहे हमारी सेमिनार हो, और एक बहुत बड़ा हमने डिजिटल रेवोल्यूशन लाने का एक छोटे से स्तर पर प्रयास किया था। और मुझे लगता है कि जब हम प्रयास छोटा स्तर पर करते हैं, वही कल को एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं गिनाए जाते हैं। मुझे अंत में निदा फाजली साहब की वो 2 लाइनें याद आ रही हैं, उसके बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं लिटरेचर मेरा एरिया है और कहीं ना कहीं लिटरेरी एक हृदय संवेदनाओं से भरा हुआ कवि हृदय कई बार काम करता है। तो ये कहता है, जो निदा फाजली साहब की लाइनें हैं, कि नन्हे मुन्ने हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वरना ये भी हम जैसे हो जाएंगे, 4 किताबें पढ़कर वरना हम जैसे हो जाएंगे। इन नन्हे मुन्ने हाथों को हमने आज सिर्फ यही नहीं सिखाना कि किताबें पढ़नी है, बल्कि उनको ये भी बताना है कि कैसे चांद और सितारों तक पहुंचना है। तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट, you have to strive best, and this is the time then when you can gaze your knowledge and you can do something best for the society. And I believe that कि आज अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो कल आपको दुनिया आपका सर्वोत्तम देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू। Thank you so much, Professor Dhananjay Joshi, sir, for your enlightened and motivating words, sir. Thank you so much. It has been a very great honor to listen to you at this platform. May I take your permission, सोनिया जी? भाटिया सर, मैं आपकी इजाजत लेके मुझे 12 बजे पहुंचना है। मैं अभी निकलने के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for giving your valuable and precious time. And we sincerely hope that in coming up times also your blessings will always be with us and we can learn more under your guidance and tutelage. Thank you so much, sir. Okay. Pay my regards to everyone. Thank you. Yeah, sure, sir. Thank you so much. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. It's time to move to our towards our next technical session 2 of the national conference. A very good morning to one and all present here. I, Garima, Assistant Professor, Geeta Rattan Institute of Advanced Studies and Training, feel privileged to introduce our resource person, Professor Vandana Saxena Ma'am, CIE, Department of Education, University of Delhi, for technical session 2 of the national conference. Ma'am is a very renowned figure in the field of education with a very rich experience in teaching and research in the areas of diversity and inclusion and science education. Ma'am has been engaged with many national and international organizations, including World Bank, MHRD, NCTE, SCRT, among others. Professor Vandana has organized many national and international seminars, workshops, symposiums, FDPs, and also undertaken research projects funded by MHRD, UGC, and University of Delhi. Ma'am has also developed e-learning modules, published number of articles, papers, chapters in various books, and also edited a few books in the areas of diversity and inclusion. Last but not the least, a number of research scholars at MPhil and PhD level are also working under the guidance and supervision of Ma'am. Now I request Honorable Professor Vandana Saxena Ma'am to take over the session. We welcome you, Ma'am. Before ma'am you start, I'll take just a few 1.5 minute. Thank you so much for accepting our invitation. And after a long time, we are seeing each other online. And I miss you a lot, coming to the college. And I hope that next time we will have instead of online, we will have a offline event, whatever seminar, conference, or whatever it is. And we can share our thoughts over a cup of coffee and tea. And it's our privilege, ma'am, and pleasure that you have agreed to and spare your time. Thank you so much, ma'am. We always love to hear from you. Thank you, ma'am. Thank you so much, Sonia ji, for that very warm welcome, and a lot of thanks to Garima also for welcoming with that kind of introduction.
नमस्ते मेरी भाटिया सर को, जो हम सबके लिए ही गाइडिंग लाइट रहे हैं और कंटिन्यू एंड यू नो वी वुड वांट टू continue to be under your guidance, sir. So thank you so much, Bhatia sir, for inviting me and making me a part of this. सोनिया जी, कॉफी के साथ साथ मुझे वो आपके ब्रेड रोल्स और वो भी खाना है, पनीर पकौड़ा, विच आर एक्सट्रीमली डिलीशियस. यू हैव अ वेरी गुड कैंटीन जिसकी चटनी भी बहुत अच्छी होती है. तो डेफिनेटली मैं मिस कर रही हूँ इंस्टीट्यूशन में आना, और जितने भी हम एकेडमिक डिस्कशंस करते थे जो उसके अंदर एनरिचमेंट थी, बट उसके साथ वो वार्मथ ऑफ हॉस्पिटैलिटी यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंशन. तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मैं आऊँ और यू नो वंस इन अ वाइल जब हम बिंच करते हैं और चीट मील लेते हैं तो मैं वो ब्रेड रोल्स खाऊं. आप म्यूट पे हैं सोनिया जी. सोनिया जी म्यूट पे है जी. थैंक यू सो मच. सो आई थिंक मुझे प्लीज थोड़ा सा गाइड करेंगे कि क्या कोई प्रेजेंटर्स भी हैं इस सेशन में, या आई मीन वी गो ऑन लाइक दिस. आई एम स्पीकिंग एंड देन we'll have people, we'll have a question answer session. Garima, please guide. Do we have any presenters? No, ma'am, no presenters are there. Okay, thank you. So technical session था तो मुझे लगा maybe we have some presenters also. Okay, thank you so much. And I think जिस थीम पे जिस तरह से प्रोफेसर धनंजय जोशी ने इस पूरे प्लेटफॉर्म को सेट किया है, I think we are all aware and we are all informed about the kind of discussions that we are going to have through the day. It's a very interesting and important output of NEP that we are trying to talk about or hold a national conference on the theme, which is like revolutionizing teacher education with. अब ये जो शब्द है ना आगे वाला, हम इसका एंटरप्रेन्योर बोलें, एंटरप्रेन्योर बोलें, या हम इसको किस शब्द से संबोधित करें, मेरे को लगता है ये भी एक मसला है, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत चर्चा होती है. जब भी कोई इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलता है तो सब फिर कोई पलट के उसको बोलता है कि ये एंटरप्रेन्योर वर्ड है, दिस इज नॉट लाइक दैट. तो प्रोनाउंसिएशन ही जिस शब्द की इतनी विविधताएं और इतनी डाइवर्सिटी लिए हुए हैं, उसका जब हम लेके आने की एक जिसको हम बोलते हैं कि पीपल कंजम्पशन, यू नो, वी आर ब्रिंगिंग इट for the understanding of common people of the nation. I think that's where the challenge begins from. So speaking vocab, but उसके beyond जब हम ये जो combination आप लोगों ने इसका रखा और जिसके बारे में सोचा, I think ये बहुत ही critical theme है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए. कुछ मैं इसके अंदर पॉजिटिव्स बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं कुछ इसके जो जिसको हम बोलते हैं हम कह सकते हैं वार्निंग सिग्नल्स, मैं उनके ऊपर भी कुछ बात करने की कोशिश करूंगी कि आगे आने वाले समय पे इसके अंदर एक जो निहित जिसको हम बोलते हैं निहित भाव जो है, जो which is something which is saturated inside, is something which needs to be critically examined also. I'm imagining that all of us who are here at this forum are primarily connected with the school education in some way. Either we are school personals or we are teacher educators who are ultimately serving the purpose of school only. So I think उस कॉन्टेक्स्ट में जो पहला सवाल मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि क्या हम एजुकेशन के गोल को डिफरेंटली विजुअलाइज कर रहे हैं जब हम इस थीम के साथ लेकर आ रहे हैं. बिकॉज एंटरप्रेन्योर होना चाहिए एक व्यक्ति को, इसके बारे में बहुत सारा बात हो रहा है, बहुत चर्चा हो रहा है, और ये एक जब मेरे जैसे लोग जब इसको देखते हैं तो कई बार एक साजिश की तरह लगता है. इट लुक्स like a plan, it looks like a design where people are told that please look after yourself, please learn to look after yourself. There's a lot of critique in the past. I'll say 75 years on, someone or the other has critiqued the Macaulay's idea of education and things like that. But I think this policy puts a very different dimension to that, and I'm mentioning to the policy because whatever is going to happen in the next 15, 20, 25 years would be or based on the premise of the policy that we have that has been presented to the nation, and that is why the policy becomes very, very important.
So let's try to understand. I just thought that maybe this may be a forum where we'll try to understand that how the goal of education has been redefined in this entire context. Now, this is both. When I say this is both the beauty of the policy document, and this is also one of the major alarms that we should be focusing upon, that we should be hearing to in that particular context. So what is the beauty? Let's just start on the positive note and try to figure out that what is the beauty of it. The beauty of it is that it very categorically speaks about कि हमें अपने एजुकेशन के गोल्स को रीडिफाइन करना है. व्यक्ति की अपनी जो सोशियो पर्सनल, किसी भी इंडिविजुअल की जो सोशियो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है और हमें उसी के इर्द गिर्द उसके शैक्षिक अनुभव या उसके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को डिजाइन करना है. Now, this is an excellent way of paraphrasing what has been said in the middle of 80s when we started talking about constructivism, and then when we started talking about humanism as an ism to address the various issues in education. At that point of time, when we started thinking about it like this, I think now what has changed is we are actually talking about respecting the context of the child. And we are also very categorically mentioning here, I'm using this word categorically time and again, because we need to understand that how this document differs from the earlier documents. It does not talk about socio-personal context of the child alone. It talks about the socio-personal context of the community in which the child is located. And I think that makes it a lot more beautiful and lot more meaningful for children in their own context. Various things which are debated upon are also there. For example, there is a big debate about the language. I'm talking about the language and the medium debate over here. I'm mentioning that up because we need to understand that if a child becomes an entrepreneur, how we really want to, what will be the role of language. There's a lot of discussion about how if you don't know English, you don't have that advantage of the language in the contemporary scenario. And here comes a policy which says that the primary education, at least the primary education, should be given in a medium which is the child's native language medium. I have a little point of difference with mother tongue, with all those kind of things. I'm just talking about a local language where the child resides. So we need to now kind of understand this idea that so this is a kind of a challenge which we are talking about. Language is a kind of a challenge. I come back to the point that is it talking about revisiting the goal of education? And that is something which I think at the level of it, at the primary level of it, we need to deconstruct this notion vis-a-vis the notion which was given by Macaulay's education system. What is the point of difference between the two of these, and how we are going to look at it and take it ahead and work on it accordingly. So Macaulay was very clear. They wanted a kind of an education system where they can create a group of individuals who were Indians. And then that popular line, that they were Indian in blood, but in thought they are British. I think that entire idea which was there, they worked on that. The entire education system was planned on that. Now, which consequently, that education system was kind of focused upon creating a kind of a courtroom or a kind of a working people personals for the governance, for the purpose of the British Raj that we call as, So they were more interested in organizing their work. They needed more people, and they probably thought that instead of getting people from Britain and settling them up here, it might be a little expensive. They were basically with a business mind, if not exactly entrepreneur. So I think this was an idea which was an idea from an entrepreneur called Macaulay, who said that let's just groom people from this nation only. Why do we have to
kind of go on and bring more Britishers from Britain and things like that. So I think that was the purpose. So when we talk about Macaulay's idea, when we talk about that here is a policy which counters the Macaulay's idea, I think that's the basic difference in visualizing the goal of education when we are talking about any educational embarkment from 2020 onwards. So now this theme, which is very wisely, I think, very wisely formulated. So I also want to congratulate people who have thought about this theme. We are now talking about that education will not be able to, the purpose of education will not be to get a job. You know, that is the primary difference which I see in this context between Macaulay's system of education and the education system which is proposed through NEP 2020. So they're saying that, frankly saying, I mean, this policy is a kind of an admission, is a kind of a humble declaration from the government that you please study, because studying and taking education is very important, but please stop thinking about connecting education with job, because that will not happen. So earlier also, in the Macaulay's time or in the past, people were talking about education, but people were not talking about educating in the sense of the entire population of India at that time, whatever it was. I don't have the numbers at this moment. So in 19th century, this is around 1800 something when Macaulay came in, and then he started talking about when we had this organized school education and then higher education, which we subsequently followed up to a large proportion. We have followed it up in the post-colonial time also. So the purpose of having a formal education, whether it was school or it was higher education or it was the civil services that we have had at that point of time, I think entire thing was geared towards preparing a few citizens of India to help in the process of governance. They did not think about self-reliance. They were not worried about that what others are doing. They were not worried about what peasants or the local people are going to be doing, how they will earn, how they will get money, how they will get their livelihood. There was no consideration with regard to that. Now, incidentally, or we should say unfortunately, what happened after 1947, that is the post-colonial period, this trend continued. We thought that this was one of the best systems, and we just tried to continue with that. So what happened in the entire process of the last 75 years, we all as teacher education should be able to understand, critically examine, and then think about what am I going to do in my own class, because at the end of the day, it is between me and my students in the class where I am situated and located. So unfortunately, this continued, and what happened in the subsequent time that we killed a lot of local artisans who were living their life on a particular in a particular manner, by certain kind of art and craft, by certain kind of wisdom, the community wisdom that they had, and out of which whatever was created out of it, whether it was food or it was art and culture or it was any other thing, they subsequently started. Even in post-colonial India, we continue to hamper those kind of things, despite the fact the basic education from Mahatma Gandhi spoke about, how basic education has to be linked with vocationalization, how we have to work on cottage industry and what do we say, and strengthen the cottage industry in that particular manner. I think everything was said, it was correctly visualized by people, but when it came to practice, somehow the governance in post-colonial India found it okay to continue with that, and they thought probably we can spread the entire thing with that notion only. So what happened was, every community who was coming to education, they started coming to education while they were now not interested in the local task or the local work or the local artisan or the local
craft or the local farming that they were doing in their thing. So it in a way became a way to leave your local context and to become to migrate to different cities, different places, or either nationally or internationally, and get on to jobs which were very wrongly, is the word I want to use that word wrongly, named as blue collar, white collar and sahabiyat, जिसको हम बोलते हैं, उस सहाबियत को लेके जो शिक्षा का एक उद्देश्य निकल के आना शुरू हुआ, फिर उसी की वजह से वो सारा डिस्ट्रेस भी आना शुरू हो गया। डिस्ट्रेस मतलब इतना नौकरी तो था नहीं ना जितना हम लोग सोच रहे थे कि सब लोग यदि पढ़ेंगे और उसके बाद सरकार से आके कहेंगे कि आप हमको नौकरी दीजिए, तो सरकार के पास वो नौकरी था नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा कि अब 1991 के बाद जब हम लिबरलाइजेशन एरा के अंदर एंटर करते हैं तो लोगों को लगा कि अब कॉर्पोरेट जो है उसके आने से सरकार के पास नौकरी बढ़ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि हम क्योंकि अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो हमारे पास उस जगह जाने का कोई एवेन्यू नहीं है। तो जब हमने उस एजुकेशन को, जब हमने लिबरलाइजेशन के बारे में चर्चा करी और कॉर्पोरेट्स आए और सब्सिक्वेंटली जब एजुकेशन भी प्राइवेटाइज हो गई, तो भाषा का माध्यम जो था वो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन की तरह लोगों के सामने आया कि यदि आप एक तरीके की भाषा नहीं बोलते हैं, यदि आप एक तरीके से बात नहीं करते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, आपके पास फलाना गाड़ी फलाना फोन नहीं है, तो शायद आपकी जो इज्जत है, शायद जो आपकी प्लेसमेंट है, शायद जो आपकी रिकॉग्निशन है सोसाइटी में, वो उस तरीके से नहीं हो पा रही जो आपकी एस्पिरेशन में जा रहा है। तो अब ये यहाँ पे ये डाइकोटमी है। एजुकेशन को कहा गया कि वो तैयार करेगी आपको जॉब सेक्टर के लिए, एक उद्देश्य की तरह। मैकॉले के साथ वो उद्देश्य कंटिन्यू रहा और हमने उसके अंदर, क्योंकि विविधताएं थी, क्योंकि भारतीय संदर्भ में विविधताएं थी, तो इस तरह का अनरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, डिस्ट्रस्ट लोगों के बीच में आना शुरू हुआ कि हमें किस तरह की आप एजुकेशन दे रहे हैं जिसको लेके हम नौकरी तो कर ही नहीं पा रहे। अब नौकरी चाहे सरकारी तंत्र में थी, चाहे नौकरी प्राइवेट तंत्र में थी, कॉर्पोरेट में थी, पर उसके लिए जो तैयारी थी उसमें ना केवल बदलते हुए समय में पिछले 2 साल में हम और आप ही कितना बदल गए। हम और आपको ही ये सोचना पड़ गया कि हम ऑनलाइन कैसे काम करेंगे, जो कि हम शायद पहले सोचते भी नहीं थे। जिस तरीके से हम पहले बातों के बारे में चर्चा भी नहीं करते थे। हमें याद है जब हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते थे तो कुछ लोग बोलते थे कि हम आ नहीं पाए और वो उनका वीडियो लेक्चर वहाँ पे अरेंज होता था, तो एवरीबडी सिटिंग, बट दे यूज्ड टू बी रियल सीनियर पीपल, यू नो, कि उनको सब सुनना चाहते थे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो चलिए आप आ नहीं पाए, इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट एटलीस्ट हमने आपका एक सेशन ऑनलाइन रखा। और ये भी सारी कॉन्फ्रेंसेस में नहीं होता था, जो थोड़ी रिसोर्सफुल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी वहाँ पर ये चीजें, ये संभावना रहती थी। तो एक चीज जो बहुत ही एक्सक्लूसिव तरीके से कुछ ही लोगों को मैं कहूंगी कि 0.01% लोगों को अवेलेबल थी, वो चीज अचानक ही पिछले 2 साल में सब लोगों के लिए एक आम जरिया बन गई। We all became it became a regular means for all of us to kind of communicate with each other, and that is why even today we are able to be in this particular forum with all this kind of energy and a similar kind of academic strength that we are holding this online session. So when I'm talking about this, कि ये पूरी तैयारी होना कि जब समय बदल रहा है और उसके लिए जब हम एक व्यक्ति की तैयारी की बात करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल की तैयारी की बात करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स उसके साथ जुड़ जाते हैं, जिसमें उसका अपना सोशियो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, उसका अपना बोली और उसका अपना लहजा, दोनों चीजें साथ में आती हैं। तो एक व्यक्ति का लहजा और लिहाज कैसे बदलेंगे, इस बारे में बहुत ज्यादा हमें सोचने का जरूरत था। हमारे NEP 2020 ने ये कहा कि चलिए हम इस समस्या को थोड़ा नीचे से, यानी कि रूट के लेवल से इसको समझने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम इस संदर्भ को कहीं ना कहीं बदल सकें या हम इस संदर्भ को री इन्वेंट कर सकें। सबसे जरूरी उसके लिए ये होगा कि हम सभी लोग, क्योंकि हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सभी उसी मैकॉले की एजुकेशन से ही पढ़े हैं, हम उसी उद्देश्य के साथ पढ़े हैं, तो हमारे अंदर पे ये बहुत अनरेस्ट है कि बच्चा क्या करेगा यदि उसको नौकरी नहीं मिलेगा।
Having said that, I'm not saying that government should stop recruiting people. I'm not trying to say that we should promote contractual appointments of the people. I'm not trying to say that government should give away the responsibility of appointing people. But what I'm trying to say that if we continue to hold the goal of providing formal education as getting into a job or as preparation for a job sector, we are in for a trouble. We are in for a trouble for the simple reason that there is not so much of job possibility in that particular area. Two, we would continuously try to be in a state of unrest, and we would never try to explore the surroundings and to be in that kind of mode where I think about myself as a problem poser or as a problem solver. So I continue to problematize my situation. I continue to not understand how can I think the idea is, see, the fundamental idea right now is that what I can get from an economy called India, which is growing. We have to shift the focus of what I can get to how I can contribute to this particular economy. Now, when I'm getting, then also I'm getting certain kind of economic benefits. When I plan to contribute, then also my economic strength is going up. I'm trying to be financially stable in that particular context. But I need to very clearly understand that this will change my expectations from the system of education. Now, I would not want an education that prepares me for one kind of competition. So then when, and we will probably not have a situation where lakhs of people are sitting for a few hundred seats in certain institutions and certain places like that. There must be a lot of people who find ways of looking into their lives, of earning their livelihoods in a separate manner, in looking at certain other kind of problem solving attitudes and things like that. So I think the education, the goal of education needs to be revisited if we really want entrepreneurs to be a consequence of this education system. So that is my first point where we can have a discussion once we open a discussion forum around here. So apart from that, I think the second point which I want to also make in this context is that when we're talking about an entrepreneur, who actually is an entrepreneur? Who do we think is a person who would be and whom we can call, tag, name as entrepreneur? I think that is something which we need to be further think about. Do we have any examples of people who are entrepreneurs from villages, from very core of India? I want to call it core of India because we still have more than 60% of population living in not so urban cities and things like that. Waiting for of course, all of us are waiting for the next census to happen so that we can really make sense out of it. We can get new data with regard to it. But बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला है. लोग अभी भी अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में हैं और अपनी लोकल भाषा को, अपने लोकल खान पान को, अपने लोकल कॉस्ट्यूम्स को रिस्पेक्ट करने वाले लोग अभी तक हैं हमारे साथ, और बड़ी तादाद में, बड़े प्रोपोर्शन में वो सब लोग हैं हमारे साथ. तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम एंटरप्रेन्योर का उदाहरण लेकर आएंगे, जब हम लोगों को केस स्टडीज बताएंगे, रोल मॉडल बताने का हमें बहुत एक, जिसको बोलते हैं, हमें एक अच्छी पेडागोजी लगती है कि जब रोल मॉडल्स लोगों को बताते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है. बट अब अगर ये मकसद बदल रहा है तो हमें रोल मॉडल से हटके अब हमको केस स्टडीज में आना पड़ेगा, क्योंकि रोल मॉडल के अंदर मैंने अक्सर देखा है जब हम रोल मॉडल्स की बात करते हैं तो उनको हम ना एक पेडेस्टल ऊपर रख के बात करते हैं कि फलाना व्यक्ति महान बन गया. जब तक हम महान नहीं बनते तब तक शायद हम रोल मॉडल की कैटेगरी में नहीं आते. तो विच मीन्स अगर मैंने ट्रिलियंस नहीं कमाए तो मैं कभी भी रोल मॉडल नहीं बन सकती, बिकॉज आई हैव टू बी एट दैट पोजिशन टू बी कॉल्ड अ रोल मॉडल. Whereas case studies,
are people. Case studies are people like me and you, wherein we kind of say that, okay, so this was my situation and this is how, where I am, and this is these are the challenges that I have faced. These are the privilege that I have had. These are the kind of advantages that I have. These are the kind of disadvantages or limitations that I've had in my life journey. So I am narrating my journey to you. So case studies पे शायद हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ऐसा मेरा सोचना और समझना है। मैं इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अब हम एंटरप्रेन्योर्स किसी IIM बेंगलोर या हम IIM गुजरात से एंटरप्रेन्योरशिप वाली बातें नहीं कर रहे हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि रेगुलर स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा, और वो या अपने साथियों के साथ मिलके या किसी पारिवारिक संदर्भ में इकट्ठा होके कुछ ऐसा सोचेगा जिससे ना केवल वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, अपने कल्चर को अलाइव रखेगा, बल्कि एट द सेम टाइम फाइनेंशियली भी वो अपने आप को सस्टेन करेगा, एंड ही और शी विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द नेशन। इकोनॉमी ऑफ द, आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट, मेरे को इकोनॉमिक्स की बहुत ही बुनियादी समझ है, और जिसको बोलते हैं ना बस इतनी 2 + 2 4 होते हैं, इतनी वाली जो जिनको मैथ्स वाली जो बेसिक समझ कहते हैं, उतनी ही समझ है मुझे इकोनॉमिक्स की। लेकिन मुझे ये लगता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं, ये बात कहीं ना कहीं जरूर होती होगी कि मैं आपसे मांगने की जगह यदि खुद अपने गुजारे लायक कमाने लगती हूँ तो भी मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज वो 10 रुपया जो आप मुझे देते थे, अब मैंने वो 10 रुपया आपसे लेना बंद कर दिया, तो एटलीस्ट आई स्टॉप बीइंग अ लायबिलिटी। आई डोंट नो इफ देयर इज any principle in that or not, but I've seen a lot of families growing up like this, that okay fine, now my falana kid is working, so मेरे को उसका pocket money से बच गया, so this is my saving which I'm going to take home. The child may still not be giving money to the family, but self-sustenance is also a very important economic and financial contribution in a given setup. So when we are talking about like this, when we are working around like this, I think the entire model of education will have to change now. We will have to talk about a lot of self-reliance. We will have to talk about a lot of criticality. We will have to talk about a lot of analysis. A lot of analysis the children would need to have, and that analysis will have to be multidimensional. Which means if I give a case study to a child, not everybody tries to analyze it from the point of view of social segment. Somebody may also like to do it from a gender perspective, and other person may also like to do it from an education perspective, and the third person may also like to do it from a financial perspective. So building on these kind of situations, providing case studies which look like or which are actually taken from the context of the child will become very very important. अभी तक हम पेडागोजी में केवल स्टूडेंट के बारे में जब बात करते थे तो हमें लगता था यदि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम आसपास के साइंस से जुड़े हुए उदाहरण लेने एंड देन वी कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट। तो या तो जब हम उसको पढ़ा रहे होते हैं पेडागोजी में, सो हम कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वी टेक अप दोस थिंग्स, या फिर एग्जांपल्स जो बच्चे की सराउंडिंग में है हमने उससे पूछ लिया कि ऐसा क्या होता है, वहाँ क्या होता है, बिजली का बिल कितना आता है। फिर हमने कहा कि जब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं तो हमने उसको बोला कि अच्छा अभी तुम अपने बिजली का बिल कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। फिर हमने उसको बोला कि नहीं हमें इसको कैपेबल करना है, तो हम उसको बोलेंगे अच्छा बताओ बिजली का बिल अपना कम कैसे करोगे यदि तुम्हें कम करना है। तो इस तरह के सवाल तो अभी तक पूछे जा रहे हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। फिजिक्स से मेरा जुड़ाव है तो मेरे उदाहरण भी वहीं से निकल के आ जाते हैं, और ये बिजली का बिल एक बहुत ही मजेदार काइंड ऑफ एपिसोड है जिसको हम हमेशा डिस्कस करते हैं और जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिजॉल्व करने के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इस तरह के सवाल तो अभी तक आ रहे हैं, लेकिन यदि हम करंट श्रीलंका की सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे इतना लंबा मतलब they don't have electricity, we all are aware of that, I don't have to go into the details of it। ये स्थिति जब आएगी तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी चर्चा होनी शुरू हो गई है कि कंजम्पशन बढ़ गया पावर का, गर्मी हो गया, पावर का कंजम्पशन बढ़ गया, और फिर so on and so forth। तो हमें हरियाणा को बिजली देनी है नहीं देनी, हमें चाहिए। तो there is already a lot of debate about electricity, which is a major resource in people's life।
Now, supposing this is the problem that we are posing, or this is the kind of a situation that we are presenting to the students, कुछ स्टूडेंट उसको उस तरीके से देखेंगे कि क्या हम कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बारे में सोच सकते हैं. कुछ लोग उसको उस तरीके से सोचेंगे. देयर विल बी चिल्ड्रन हु विल थिंक अबाउट इट लाइक दैट, बट देयर आर अदर चिल्ड्रन हु वुड थिंक अबाउट कि क्या हम ऐसे घर बना सकते हैं जिसके अंदर गर्मी का एहसास ना हो. क्या हम अपने कुछ इस तरह का घर के अंदर हम कुछ ऐसी चर्चा कर सकते हैं. देयर विल बी अनदर थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु माइट थिंक कि क्या हम कुछ ऐसा खान पान में अपना बदलाव कर सकते हैं जिसके अंदर हम इस तरीके की सिचुएशन को काउंटर कर सकें और हम इलेक्ट्रिसिटी पे कम डिपेंडेंट हो जाए. हमको एसी चलाना है क्योंकि हमको गर्मी लगता है. यदि हमको गर्मी लगनी बंद हो जाए, अगर हमारा बॉडी का वो उस तरीके के खाने से यदि हम कुछ अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा फूड है जिसकी वजह से हमारा टॉलरेंस टू टेम्परेचर बढ़ जाए. देयर वुड बी अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु माइट थिंक ऑफ इट लाइक दैट. देयर कुड बी अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु वुड थिंक कि क्या हम कुछ ऐसे कपड़े डिजाइन कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे को ये चीज होना खत्म हो जाए, या हमें गर्मी कम लगनी हो जाए, या जो भी उसका पूरा रिलेशनशिप है. तो ये अलग अलग तरीके हैं एक ही प्रॉब्लम को एड्रेस करने के. एंड दिस इज प्रॉब्ली व्हाट वी मीन बाय एंटरप्रेन्योर्स. सो ये सारे ही तरीके जब हम सोचने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे तरीकों के अंदर ग्लोबल होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है. ये सारे ही तरीके लोकल कॉन्टेक्स्ट के चलते वहीं पर बात हो सकती है इनके बारे में, वहीं पे इन पे चर्चा हो सकती है, और हम वहीं पे इनके बारे में सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. यानी कि जो लोग ये कह रहे हैं खाने के प्रति जो ज्यादा जागरूक है, वो शायद अपने लोकल फूड में से ही कुछ ऐसी चीजें निकालेंगे. जो लोग घर बनाने की बात कर रहे हैं कि हम घर को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, शायद वो लोग लोकल रिसोर्सेज जो वहां पे अवेलेबल है उन्हीं की बात करेंगे. और जो लोग कपड़े का बात कर रहे हैं उसी तरह के फैब्रिक को लेके, या जो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहे हैं वो लोग उस तरीके की बातों को लेके करेंगे. तो ये तो सही है कि इलेक्ट्रिसिटी हम बिल कैलकुलेट कर लें, हम उसको कम करने के बारे में चर्चा करें छात्रों के साथ, लेकिन अभी टाइम ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की अल्टरनेटिव को भी ढूंढना शुरू करें, जिसमें ना केवल हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ या अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पर शायद हमें अपने वेज ऑफ लिविंग को भी रीडिजाइन करने की जरूरत है. चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे क्लॉथ हो, चाहे वो खाना हो. तो वो जो हम अपना पॉपुलर वो है ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो उसके बारे में भी शायद रीथिंक करने की जरूरत है. हमें ज्यादा लोकल होने की जरूरत है उस पूरी चर्चा में. एंड देन वी कैन प्रोबेबली गो अहेड एंड थिंक अ लिटिल डिफरेंटली इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो अब हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, अब हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, हम इसके अंदर 2, 4, 5 बातें मोटे तौर पे बड़े ही क्लैरिटी के साथ इसमें सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा है, सबसे पहले जो बच्चा और कम्युनिटी केवल बच्चे के होने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इस बात को जानते हैं कि स्टूडेंट एक पर्टिकुलर क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं. क्यों? क्योंकि उनको उनके माता पिता इस तरीके से उनके बारे में सोचते हैं. प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि कुछ समय पहले, आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को कहे हुए उनके, कि पेरेंट्स अपनी इच्छाएं और अपनी आकांक्षाएं अपने बच्चों पे ना थोपे. उनका ये कहने का मतलब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नहीं था कि पेरेंट्स एस्पिरेशनल ना हो. उनका ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ तैयारी ना करें या उनसे कुछ अपेक्षाएं ना रखें. शायद उनका कहने का मतलब ये था कि यदि आपकी अपेक्षा और बच्चे का पोटेंशियल मैच नहीं करता तो उसे इम्पोज ना करें. तो यानी कि यदि आपकी एस्पिरेशन और बच्चे का पोटेंशियल एक ही डायरेक्शन में है तो चले आगे, कोई उसके अंदर मसला नहीं हो. फिर उसको थोपना तो कहेंगे भी नहीं, फिर तो उसको तैयारी ही कहेंगे. लेकिन जहाँ बच्चे की रुचि और उसका पोटेंशियल अलग दिशा में है और आपकी अपेक्षा एक अलग दिशा में है, वहां कहीं ना कहीं रुकिए, थमिए और इस बात को असर्ट मत करिए सिर्फ इस कारण के आप उनके पेरेंट्स हैं और आप कहीं ना कहीं वो बच्चा आपके ऊपर निर्भर करता है इन द इनिशियल इयर्स ऑफ हिज और हर लाइफ. तो उस चीज का फायदा ना उठाते हुए उसको भी उतना ही मौका दीजिए और फिर आगे चलिए. आई थिंक इस तरह की जो बातें, इस तरह की जो कॉन्वर्सेशंस या संवाद हो रहे हैं जगह जगह पे,
हमारे लिए आसान है कि यदि हम पुरानी सोच में रहते हैं, यानी कि यदि हम मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम की सोच में रहते हैं, तो शायद हम इसको अलग तरीके से सोचना और सोचते और समझते हैं। लेकिन यदि हम ये देखते हैं कि उसके उद्देश्य अलग थे और आज हमें अपने भारतीय संदर्भ में अलग उद्देश्य के साथ इसको स्थापित करना है, शिक्षा के बारे में पुनः विचार करना है, तो शायद हमारा उस चीज की तरफ देखने का, उन जुमलों को सुनने का, उन स्पीचेस को समझने का तरीका काफी बदल सकता है। बहुत ज्यादा एक बारीक सी बात है और उसके बारे में यदि हम सोचें तो शायद हमारा दृष्टिकोण बदलने में ये मदद कर सकती है कि 1947 के बाद के समय को हम क्या कहेंगे। 1947 15 अगस्त 1947 के बाद के समय को यदि हम इंडिपेंडेंट इंडिया बोलते हैं तो एक अलग समझ उसके साथ बनती है, लेकिन शिक्षा के संदर्भ में यदि हम उसको इंडिपेंडेंट इंडिया ना बोल के पोस्ट कॉलोनियल इंडिया बोलते हैं तो शायद हमारी समझ उसके बारे में अलग बनती है। शायद हम मैकॉले को अलग तरीके से समझ पाएंगे और शायद हम 1947 15 अगस्त के बाद की चुनौतियों को अलग तरीके से समझ पाएंगे और शायद फिर हम अपने संदर्भ में लोकेटेड अपने बारे में इसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में अलग अलग तरह के स्कूल्स नहीं होंगे, अलग अलग तरह की नौकरियां नहीं होंगी, अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल्स नहीं होंगे। इसके बारे में कोई मुझे इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई एम प्रीटी क्लियर दैट वी आर अ डाइवर्स सोसाइटी, वी विल कंटिन्यू टू बी अ डाइवर्स सोसाइटी एंड दिस इज समथिंग which is exceptional about our country called India, you know, कि हम लोग डाइवर्स हैं और हम शुरू से ही डाइवर्स हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हमें लोगों की कमी पड़ गई तो हमने बाहर से लोगों को बुला लिया और क्योंकि हमें काम करने के लिए लोग बाहर से बुलाने पड़े तो ग्रेजुअली हमारी कंट्री जो थी वो मल्टीकल्चरल हो गई या वो डाइवर्स हो गई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री इज दैट वी आर डाइवर्स, वी आर मल्टीकल्चरल राइट फ्रॉम द बिगनिंग एंड दैट इज व्हाट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि क्या अब हम उस डाइवर्सिटी को, क्या अब हम उस मल्टीकल्चरलिज्म को बराबर से इज्जत देके, इक्वल रिस्पेक्ट देके, क्या अब हम कुछ ऐसे सिस्टम जनरेट कर सकते हैं जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय अपने संदर्भ में रहेगा और उसके अंदर आगे चलेंगे और चर्चा होगी। अभी कुछ समय पहले मुझे मौका मिला, हम लोग एक शेड्यूल ट्राइब का जो नेशनल कमीशन है उसका एक इसी तरह का संवाद वहाँ पे आयोजित हुआ, तो मैं पहुंची वहाँ पे और हमने इसके बारे में चर्चा करी और एजुकेशन के माध्यम के बारे में चर्चा हुई। तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि देखिए जर्मन में अपनी भाषा पढ़ाते हैं तो वहाँ के लोग क्या डॉक्टर नहीं बनते हैं। तो फिर किसी ने जापान की बात करी, किसी ने जर्मन की बात करी, किसी ने इस तरह के तमाम मुल्कों की बात हुई जहाँ पर लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़ते हैं और उसको और उस वहीं पे फिर वो नौकरी करते हैं और आगे चलते हैं। तो मजेदार संदर्भ था। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, तो मसला ये चल रहा था कि क्या हमारी एक सिंगल भाषा होनी चाहिए या हमें लोकल लैंग्वेज को भी उतना ही, या स्टेट की लैंग्वेज को भी हमें उसके बारे में उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। दिस वाज ऑफ कोर्स विद रिगार्ड टू अपॉर्चुनिटीज दैट द स्टेट विल क्रिएट। तो मैंने बहुत ही पोलाइटली उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट नहीं हूँ और ज्योग्राफी की भी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इस समय जर्मन की पॉपुलेशन कितनी है या जापान की पॉपुलेशन कितनी है, बट थोड़ा हम कंपेयर करके तो उसको देख ही सकते हैं। तो यदि कर्नाटका में लोग ये बोलते हैं कि हम अपना माध्यम जो है वो कन्नड़ रखेंगे, तो वो फिर कर्नाटका कन्नड़ भाषा में मेडिकल एजुकेशन भी दे, इंजीनियरिंग एजुकेशन भी दे और वहीं पर रह के वो लोग कंट्री की ग्रोथ में, उस पर्टिकुलर स्टेट की ग्रोथ में काम भी करें। तो फिर सब्सिक्वेंटली वो अपने हॉस्पिटल्स भी खोले, वो अपना, तो लोकल लोगों को सर्व करने के लिए हमें लोकल रिसोर्सेज तो चाहिए ना। हमें वो डॉक्टर तो चाहिए जो कन्नड़ भाषा में बात कर सके, बिकॉज जो लोकल व्यक्ति आ रहा है कर्नाटका का, किसी गांव का, किसी जगह का, वो उसी भाषा में बातचीत करना चाह रहा है। तो जैसे जर्मनी ने काम किया, पॉपुलेशन देखिए जर्मनी का कितना है, कितना डॉक्टर वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना हॉस्पिटल उसके पास है, उसी तरह अपना दिल्ली, अपना इंडिया का कोई भी स्टेट पकड़ लो, कोई ना कोई पैरेलल स्टेट मिल जाएगा, यू नो, ±10%। जिधर उतना ही पॉपुलेशन जर्मनी जितना उस स्टेट का होगा, उधर देखो वो अपना लैंग्वेज के अंदर काम करेंगे, अपना लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे, अपना लैंग्वेज के अंदर पूरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे और आगे बढ़ेंगे, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर।
तो अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसको पैन इंडिया लेवल पे कंपेयर करते हैं। जर्मनी का या जापान का कंपैरिजन हम भारत से कैसे कर सकते हैं? वी आर अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे जब लोगों ने ये कहा कि बीच में बहुत सारा कॉन्वर्सेशन आना शुरू हुआ कि अमेरिका ने तो फुल वैक्सीनेट करवा दिया अपनी कंट्री को और भारत जो है वो पीछे रह गया, तो मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी प्राइमरी मेरे को वो आई क्यूरियोसिटी सवाल आया कि चलो देखते हैं। और पहली बार इसी कोविड के संदर्भ में मैंने देखा कि अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है और कुछ 30-32 करोड़ पॉपुलेशन है उस देश की। मुझे नहीं पता डेटा कितना पुराना कितना नया था, बट मैंने इंटरनेट पे खोजा और उन्होंने बताया कुछ 30-32 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो हम नंबर्स को कंपेयर करने की जगह जब हम कॉन्सेप्ट को कंपेयर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं फिर गलती करते हैं। पूरे यूएसए का वैक्सीनेशन हो जाना, भारत के अंदर कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन 30 करोड़ है देख लें हम उसको, देखें फिर वहां पे कितना हमारा वैक्सीनेशन हुआ और कितना नहीं हुआ। तो जब हम कंपेयर करते हैं वॉल्यूम्स को तो हम ये बहुत ही पैथेटिक है कि हम एजुकेशन के अंदर रहते हुए भी हम इस तरह के मिसकॉन्सेप्शंस जनरेट करने की कोशिश करते हैं और इस मंशा से चलते हैं। ये मैकॉले एजुकेशन है कि हमें हमेशा ये मान के चलना है कि जो लोग कंज्यूम नहीं हुए, जो लोग एसिमिलेट नहीं हुए ब्रिटिश कल्चर में, वो सब बैकवर्ड थे। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने कभी नंबर्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, हमने केवल इस बात पे ध्यान दिया कि संदर्भ क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे वो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो अपनी भाषा में पढ़ने और पढ़ाने का संदर्भ हो, चाहे वो इससे जुड़े हुए बाकी और भी कोई संदर्भ हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो कोई भी और चीज हो। तो इसके बारे में जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें, जब हम टीचर एजुकेशन के बारे में इसके बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें डेटा कंपैरिजन उस तरह का भी लेके आना पड़ेगा। हमें अपनी किताबों के अंदर, हम टीचर एजुकेटर्स को अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर इस बात को लेके आना पड़ेगा और उसके जो लिमिटेशंस है उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। जर्मनी का कोई व्यक्ति यदि ये उम्मीद रखता है, यदि ये आकांक्षा रखता है कि वो जर्मनी के अलहदा किसी और देश में जाके काम करेगा, तो उसको वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो यानी कि यदि आंध्र प्रदेश में काम करने वाला व्यक्ति, केरला में काम करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे भारत के किसी अन्य स्टेट पे जाके काम करना है, तो उसको उस स्टेट की भाषा सीखनी पड़ेगी। और यदि वो ये डिसाइड करता है कि उसे इंटरनेशनली कहीं पे काम करना है, तो उसे उस इंटरनेशनल भाषा को सीखना पड़ेगा। और ये कितना डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए इस बात को, इतनी साधारण बात को समझना। लेकिन हम जानबूझ के एक जार्गन वीव करते हैं, हम जानबूझ के एक चीजों के अंदर एक इस तरह की जटिलता लेके आ जाते हैं कि उसका छोर पकड़ना टीचर एजुकेटर्स, स्कूल टीचर्स या बच्चे या पेरेंट्स, उन सब के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए जब हम इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें कि रिवोल्यूशनराइज करने वाले हैं हम टीचर एजुकेशन को विद द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये कहने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब हम इसको करने पे जाएंगे तो क्या हमें जानकारी है इस बात की कि वो कौन से मिथ हैं, वो कौन से आइडियाज हैं जिन्हें हमें डिमिस्टिफाई करना है और हमें इस सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट या री एनविजन कैसे करना है। जब हमारे पास वो पैरामीटर्स होंगे, मैंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे अपने हम सब लोगों के साथ साझा किए, बट आई एम श्योर कि हमारे पैरामीटर्स और बहुत सारे निकलेंगे। जब हम चर्चा करेंगे, जब हम सब बैठेंगे इस बात को लेके, तो हम समझेंगे कि संदर्भों को हम उनके मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर करें, हम संदर्भों को मैग्नीट्यूड के अलहदा कंपेयर ना करें, और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो जब हम एक जनरल इमेज फॉर्मेशन करने के बारे में सोचते हैं, जब हम एक इंप्रेशन देने के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम भारत देश का इंप्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? क्यों नीति आयोग को कुछ एस्पिरेशन स्टेट्स आइडेंटिफाई करने पड़े? ये तो वही जगहें हैं एस्पिरेशन स्टेट्स की जहां का लोकल कल्चर बहुत रिच है। वो चारपाई जो हमने यूज करनी छोड़ दी, वो चारपाई आज अमेज़न पे बिक रही है। और मैंने इस बार मतलब नवरात्रि के टाइम पे उपले का इस्तेमाल होता है तो खोजने की कोशिश करी, तो मुझे पता चला कि ऑनलाइन उपले मिल रहे हैं और वो कितने एक्सपेंसिव हैं। समथिंग जो मतलब मुझे याद है कि हमारे आसपास जब ये होते थे, ये ग्वाले होते थे, जो पूरा दूध का जो पूरा सेगमेंट है वो रहता था, उधर कम्युनिटी होती थी, तो उनके पास जाओ तो वो ऐसे ही दे देते, देवर लाइक आप एक ले जाओ, आपको एक ही तो चाहिए, कितना चाहिए आपको।
They were not even charging us for that in the past time, which is now available in that particular domain. और हमारे अपने ही परिवारों में कितने लोगों ने उपलों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, ये कहते हुए EU ये तो बहुत गंदा होता है, ये तो गाय के उससे बनता है, ये होता है, वो होता है, whatever be the things. I'm sure हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी है. नीट नहीं होता, क्लीन नहीं होता. तो आई थिंक इस सारी बातों को जब हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि मैकॉले की एजुकेशन ने चाहे प्री इंडिपेंडेंस या प्री कॉलोनियल टाइम पे या पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे एक माइंडसेट, एक एटीट्यूड, एक बिलीफ सिस्टम जनरेट किया. इट वॉज नॉट अबाउट करिकुलम, इट वॉज नॉट अबाउट अंग्रेजी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, गुजराती पढ़नी है, मराठी पढ़नी है. इट वॉज नॉट अबाउट लैंग्वेजेस. इट वॉज वेरी वेरी टिपिकली अबाउट कि हम क्या उद्देश्य रख रहे हैं एजुकेशन का, और क्या हम इस तरह की हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं क्या डिफरेंट कल्चर्स के बीच में. वो माइंडसेट जिसने बोला कि फलाना तरीका बेटर है जीने का, और जीने का जो फलाना तरीका है वो कमतर है. तो बेहतर और कमतर के कंपैरिजन में हम ये बस करते ही चले गए कि जितना लोकल कॉन्टेक्स्ट था उसको हम बद से बदतर करते चले गए अपनी समझ में. जब हमने समझ में उसको कम किया तो फिर वहां के हम उसे एक्सेप्ट कर सकें और फिर हम लोगों को प्रेजेंट कर सकें कि देखिए यदि मध्य प्रदेश के अंदर है जो कि बहुत ही पास है इक्वेटर के, यदि आप उस जगह पे रहते हैं तो आपका खान पान ये वो सब ऐसा होना चाहिए. देन वी कैन क्रिएट प्रोटोटाइप्स कि इस टेम्परेचर रेंज में, इस तरह के माहौल के साथ, इस तरह का खाना, इस तरह का रिहाइश, इस तरह का एनर्जी सोर्सेज, हम इन सब चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं. और भारत के अंदर तो इतनी विविधता है कि हम इक्वेटर के पास भी हैं, हमारे पास कश्मीर भी है, लद्दाख भी है, हमारे पास 3 तरह से हम जिसको बोलते हैं मतलब ऑलमोस्ट 3 तरफ से, हालांकि उसको कहना मुश्किल है, 3 ही है. हम समुद्र से घिरे हुए हैं तो हमारे पास. You want to discuss any point or any viewpoint, your reaction? Any student, faculty? You are most welcome for discuss on the platform. Yes. So should I wind up? Yes, sir. Bhatia, sir. You want to add anything? See, it was a scholarly presentation and you covered wide range. Share with you, like so far as entrepreneurship is concerned, when he goes to the society, तो वहाँ पे how he is useful, वो उसका जो aptitude nurture किया हमने स्कूल में और कॉलेज में, उसके बाद then how he is useful in the society. अगर सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज कर दें और एजुकेशन का नाम, टीचर एजुकेशन का नाम टीचर एजुकेटर प्रीन्योर्स हम कहने लग जाएं, तो व्हाट इज द हार्म इन दैट. तो मैंने आई ट्राई टू सिंप्लीफाई दी थिंग्स. और अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप एज इट स्टैंड्स टुडे, बिजनेस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, अगर हम इसी को टीचर्स को पढ़ाना है तो मुझे ज़्यादा उसमें सेंस नहीं लगती है. उनको हम इसको एम्फेसाइज करें कि देखो ये कंपोनेंट जो है यहाँ प्रॉफिट का है. आवर component is not to earn profit but making the students profitable. True. Enabling them to earn profit. तो उनका जो एप्टीट्यूड है उसको नर्चर करें. So this is how I take it. I don't know how you will feel about this thing. Thank you. No sir, I think that's coming from you. It is kind of, it holds that wisdom. कि आपका जो बैकग्राउंड है कॉमर्स वाला एंड देन टीचर एजुकेटर है, नाउ एट दिस टाइम जी, कि प्लीज सजेस्ट वन पिवटल पॉइंट फॉर टीचर एजुकेशन टू प्रिपेयर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. आई थिंक शिखा जी, मैं बहुत ही फाउंडेशनल तरीके पे ये कहना चाहती हूँ कि वी हैव टू रीथिंक द गोल ऑफ एजुकेशन. एक बार यदि हम अपने गोल्स ऑफ एजुकेशन को दोबारा सोचने की और दोबारा समझने की कोशिश करते हैं तो शायद हम पूरे सिस्टम में किस तरह के बदलाव चाहिए और कितने एक्सटेंड तक चाहिए, जो इंटेंसिटी है, जो जिसको बोलते हैं लेंथ एंड ब्रेथ है, जो वॉल्यूम है और जो इंटेंसिटी है, उन दोनों चीज़ों को समझ पाएंगे. तो अगर हम सभी लोग मिलकर रीथिंक करें कि आगे आने वाले 50 सालों के लिए एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, एजुकेशन का गोल क्या होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर मी, देन सब्सिक्वेंटली शायद हम उसके बाकी स्टेजेस को डिसाइफर कर सकते. थिंक द गोल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया.
we should seek the world opinion from the different educationists. Yeah. And First and foremost, conserve hands.